Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mariya Naveed, and I'm going to start my lecture of strategic marketing today with you people. This is supposed to be the interactive lecture, and this interactive lecture is basically about the chapter that I have already posted in your classrooms. I believe that you people have gone through the entire बेटा इट इज रिक्वेस्टेड कि आप लोग अपने माइक को म्यूट कर दीजिए बिकॉज पीछे से किसी के माइक की बहुत आवाज आ रही है इट इज डिस्टर्बिंग सो माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज ऑल ऑफ यू ऑल राइट द माइक्स को म्यूट कर दें प्लीज All right, I'm going to start the lecture now. The entire lecture is about the analyzing competitors. Can you people see the slides? Yes, ma'am. All right, mics up the mute. Okay. Uh, Previously, whatever we have done in the strategic marketing, you people have got the idea about the nature of marketing, the nature of management, and we learned about why the audits and SWOT analysis are important. Now it is very important to see the competitors. I think ये बात हम लोगों को बहुत clear होनी चाहिए कि we are not the only ones who are in the market to perform and to present the products and the offerings. We have got so many we've got like so many things to so many competitors around us जो कि हमारी तरह का प्रोडक्ट और हमारी तरह की जो सर्विसेज है वो दे रहे होते हैं so being a service provider or being the product manufacturer it is very important for me and you to analyze that हमारे इर्द गिर्द जो competitors बैठे हुए हैं जो हमारी तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बेसिकली क्या दे रहे हैं और हमारे में उनमें क्या मुख्तलिफ है यूजुअली जब स्वॉट एनालिसिस किए जाते हैं तो स्वॉट एनालिसिस के अंदर हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखते हैं और स्ट्रेंथ्स बेसिकली हम अपनी भी देखते हैं और कंपैटिटर की स्ट्रेंथ्स को भी जानने की कोशिश करते हैं कि वेयर दे आर गुड एट एंड सिमिलरली हम वीकनेसेस को भी देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वीकनेसेस डू वी हैव और कौन सी वीकनेसेस ऐसी हैं जो कि हमारा कंपैटिटर जो है उसके अंदर हैं ताकि हम उन वीकनेसेस के ऊपर कैपिटलाइज कर सकें I will be going through, very quickly towards the learning objectives of this chapter. First of all, Excuse me, you ma'am. people will learn. जी, मैम प्लीज कहना कि जी, वो आप माइक ऑफ कर दें मैंने माइक ऑफ करने की काफी दफा रिक्वेस्ट की है बिल्कुल यस मैम सादका है सादका Okay. सादिका प्लीज माइक हाँ प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए ताकि मेरी आवाज सबको क्लियर चली जाए वो Okay, ma'am. डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बेटे ऑल राइट ओके so the learning objectives of the chapter are the importance of the competitor analysis. हमारे लिए importance क्या है as a company competitor को analyze करने के लिए because analysis you do the analysis on the entire activity of the competitor who is competing with you in the market, and then how firms can best identify अगेंस्ट whom they are competing. हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किसके जो है किसके मुकाबले में प्रोडक्ट और ऑफरिंग दे रहे हैं एंड यू नो व्हाट कंपटीशन एक्चुअली गिव्स यू एन ऊज आपको एक ऊज मिलता है कि आप वो चीज मार्केट के अंदर जो पहले मार्केट के अंदर दी नहीं जा रही है या जिसकी कमी है मार्केट के अंदर आप वो चीज मार्केट के अंदर दें एंड देन हाउ टू इवैल्यूएट द कंपैटिटिव रिलेशनशिप्स आप किस तरीके से कंपैटिटिव रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट करते हैं I'm going to go through very quickly and then I'll be inviting you for the questions. As an introduction, in the PowerPoint slides, we have seen that in 1990s, they have seen the emergence of new type of consumers who is characterized by different value system and higher expectation. We know that because of the capitalist economies, because we know that capitalism is all about privatization sector,
private sectors come and they start businesses on their own, तो बहुत ज़्यादा competition पैदा होता है. 1990s के अंदर जब ये competition बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो definitely जो consumer हैं, उनका एक value system, उनका एक सोचने समझने का तरीका, उनके benefits की definition और उनकी expectations जो थी, they get a little more higher. So at the same time, a new type of competitor appears to have emerged along with a different type of competitive environment. And this new environment is characterized by generally higher levels and an increasing intensity of the competition. जब आपको पता है प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाती है, मेरे और आप जैसा एक सिटीजन भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके मार्केट के अंदर आता है, तो कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, because everybody is competing. और जब कंपटीशन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बाकियों से कुछ मुख्तलिफ देना है. अगर आप का एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अगर आप याद करें, मार्केटिंग के अंदर एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, उस दौर के अंदर पीपल डिड नॉट हैव मच चॉइसेस, बिकॉज ये उस दौर की बात है वेयर द पीपल वर गोइंग थ्रू अ बिग इशू, अ बिग प्रॉब्लम ऑफ इंटायर व्हाट यू कॉल इट, एक मार्केटिंग के अंदर डाउनफॉल चल रहा था. मार्केट वाज एट द डाउनफॉल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो व्हाट एवर वाज प्रोड्यूस्ड यूज्ड टू बी सोल्ड. But जैसे जैसे दुनिया, जैसे जैसे world became better, a better place to live, and privatization and capitalization came into being, तो हर आम इंसान could start their own businesses. And when they started their own businesses, तो competition इस तरह से बढ़ा because people wanted to give something extraordinary to the consumer to become the part of the consumer choice. So new and more aggressive competitors who are emerging in a greater frequency, changing basis of competition as organizations search ever harder for a competitive edge. मैं और आप जैसे लोग, when we started a business, हम लोग एक नए competitive edge की तरफ दौड़ने लगे. We wanted to do something for the people जो कि पहले नहीं हुआ, या जो पहले हो रहा है हम उसको नए तरीके से करें. Then the geographic sources of competitions were becoming wider. Geographic sources का मतलब अगर आप समझें तो I would be discussing it in a way that the world has become truly global. दुनिया बहुत ग्लोबल हो चुकी हुई है. ग्लोबल, द एंटायर ग्लोब इज द मार्केट. आपकी टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ने मार्केट को बहुत ज़्यादा जो है नैरो डाउन कर दिया है. आजकल मेरे और आप जैसे लोग अपने प्रोडक्ट को फेसबुक पे लगाते हैं तो दुनिया उसको देख सकती है. अपनी वेबसाइट्स खोलते हैं तो पीपल कैन एक्चुअली look okay what we have to offer. But what we need to understand that if we want to be different and if we want to be the people's choice, we need to adopt and adapt what the people of that geographic location really require. Then there's a niche attacks are becoming more frequent. There are different kind of segmentations. There are different levels of segmentation. एक तो segment का मतलब होता है कि आप market को segment करते हैं, divide करते हैं. लेकिन जब आप niche market की बात करते हैं तो आप segment के अंदर भी segment करते हैं. Because एक segment के अंदर भी different kind of people, different kind of cluster exist. और कंपनीज आजकल सेगमेंट के अंदर भी सेगमेंट को ढूंढती हैं. They find niche, which is a even smaller part of the segment. Niche attacks are becoming more frequent. They are becoming more frequent because people are finding even more concise, even more, defined segments to cater. लोगों की एक ऐसे क्लस्टर की कोई कैसी नीड को पूरा करने की जरूरत आजकल पेश आ रही है. और जिस तरह मेरे और आप जैसे लोग एक पर्टिकुलर निश को पकड़ते हैं जिसकी एक स्पेसिफिक डिमांड है और हम उसके ऊपर केटर करते हैं, बिकॉज उसको केटर करना बेहतर है, आसान लगता है, क्योंकि कुछ नीड्स हैं, आपकी रिसोर्सेज जितनी हैं आप उसके अंदर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. देन हमारे पास स्ट्रेटेजिक अलायंसेज आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड नेसेसरी. स्ट्रेटेजिक मीन्स that you find a proper road map, and alliances means कि आप अपने आप को अकेले प्रोजेक्ट नहीं करते, आप अपने आप को डिफरेंट कंपनीज के साथ अलायंस क्रिएट करते हैं to fulfill a specific need of any cluster. Then there's an option of the pace of innovation is speeding up. Definitely जब आप pace of innovation is speeding up, because competition तो बहुत बढ़ रहा है ना. जब competition बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो pace of innovation has to speed up, because अगर आप innovation नहीं लेकर आएंगे, और innovation भी आपने
अपने मार्केट मयोपिक होके नहीं करनी है, आपने इनोवेशन भी अपने जो इर्द गिर्द के आपकी जो व्हाट यू कॉल इट, आपके जो इंटायर सेगमेंट के अंदर फोकस ग्रुप्स हैं, उनसे रिसर्च करके सबसे पहले इस बात का तयन करना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज बीइंग नीडेड बाय द कस्टमर्स, व्हाट इज बीइंग नीडेड बाय योर सेगमेंट. सो यू कैन नॉट मेक इनोवेशन विदाउट देयर कंसेंट एंड विदाउट देयर आप उनकी कंसेंट के बगैर या उनकी प्रेफरेंस के बगैर इनोवेशन भी नहीं कर सकते. So stronger relationships and alliances with the customers and distributors are becoming even more frequent. Value added strategies are becoming more necessary. देखिए दो तरह की चीजें होती हैं. एक होती है कोर सर्विसेज या कोर प्रोडक्ट्स. उनका काम होता है वो बेसिक जरूरियात पूरी करना जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सप्लीमेंट करना, इनहांस करना एक्चुअली ब्रिंग्स इन द कंपेटिटिव एडवांटेज. कोई चीज जब आप एक्स्ट्रा देते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल गाड़ी का काम तो चलना है ना, लेकिन आप जब उसके अंदर एडेड एडवांटेज कोई दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस फैसिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, दैट इज बेसिकली अ सप्लीमेंट्री वैल्यू एडेड स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से आप लोगों के दिमाग के अंदर एक पोजीशन ले सकते हैं. सो इन दैट रिगार्ड वी नीड टू सी कि हमारा कंपैटिटर क्या कर रहा है और हमने उससे डिफरेंट क्या करना है, उससे बेहतर क्या करना है, ताकि जो मार्केट वो और हम एक साथ केटर कर रहे हैं, हम उसको कैप्चर या विन कर सकें. Then there's a price competition, which is becoming more aggressive. Long-term differentiation is becoming more difficult to achieve, with the results that a greater number of enterprises are finding themselves stuck in the marketing wilderness with no obvious competitive advantage. Long-term differentiation का मतलब ये होता है, how am I going to make my product different than the others? तो लॉन्ग टर्म डिफरेंशिएशन हम कर नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इवन द अदर सेकेंड विच इज कमिंग अप. इतनी ज्यादा इनोवेशन क्विक हो गई है और इतना ज्यादा कंपटीशन मार्केट के अंदर बढ़ गया है कि we cannot actually rely on the long-term differentiation. It is becoming more difficult to achieve, with the result that a greater number of enterprises are finding themselves stuck in the marketing wilderness with no proper competitive advantage. जब आपको competitive advantage नहीं, आपको कभी भी long टर्म डिफरेंशिएशन में कि मैं जो हूं, अगर आज अपने आप को इस पर्टिकुलर क्वालिटी के ऊपर कंपीट कर रही हूं, तो आप बहुत अरसे तक इस तरह नहीं चल सकते, क्योंकि आपका कोई और कंपैटिटर आपको देखते हुए मार्केट के अंदर आएगा और क्या पता आपसे बेहतर चीज दे रहा है. So in this regard, in order to have an analysis of the competitors, you need to go through one thing, that you need to be very, very marketing intelligent. You need to be very quick, और आपकी जो partnership relationships हैं with the suppliers, with the other people around, आपकी customer के साथ जो relationship है, that has to be very thick to get the know-how that what market is basically going towards, what are the trends of the market, and how we can actually earn the competitive advantage. Bad competitors are becoming even more common and difficult to cope with. Bad competitors are those competitors who may be ones जो के ethical perspective का ख्याल नहीं रखते. Basically, they try to cope up. They try to dig in so hard के they being very intelligent. They are the ones जो आपके सारे perspectives को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह देखते हैं, and they try to be there. आपके आने से पहले उनकी जो मार्केट की जो एक क्या कहते हैं मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, एथिकल तरीके से या अनएथिकल तरीके से, दे ट्राई टू गेट द नो हाउ ऑफ द मार्केट. एंड यू नो, बैड कंपेटिटर्स आर बेसिकली दोज हु आर नॉट एडहेरिंग to the traditional and unspoken rules of the competitive behavior within the industry. They are becoming more common, and they are actually capitalizing on the fact ke matlab it is everything is fair in the war. हर चीज वॉर में फेयर है, हालांकि वॉर के भी कुछ रूल्स होते हैं. सो यू कैन नॉट कोप अप विद दिस काइंड ऑफ कंपैटिटर्स बिकॉज दे आर देयर. सो जानने का मतलब ये है कि हमें पता हो कि हम किन लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं. अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हम किन लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो प्रोबेबली वी वोंट बी एबल टू do anything. Competitor analysis can be defined as, now we're coming to the definition of the competitor analysis, which says that it is the set of activities which examines the comparative position.
ये वो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो इस बात को एग्जामिन करती हैं कि आपकी कंपैरेटिव पोजीशन क्या है ऑफ कंपीटिंग एंटरप्राइजेस विद इन अ गिवन स्ट्रेटेजिक सेक्टर. व्हेन आई टॉक अबाउट अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर इज अ प्लेस और इज अ जियोग्राफिकल लोकेशन वेयर यू आर लोकेटेड. उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आप किधर स्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर कंपैटिटर्स, आपका शेयर ऑफ मार्केट क्या है in that particular strategic sector. In this, competitor analysis seeks to, competitor analysis किन चीज को सीख करता है? सबसे पहले providing an understanding of your competitor advantage and disadvantage relative to a competitor's position. आपकी competitor की जो position है, आप इस बात को देखते हैं कि आपका competitive advantage और आप understand करने की कोशिश करते हैं कि आपका competitive advantage और disadvantage क्या है to your competitor's position. Then you help in generating insights. You help in generating insights into competitor strategies, past, present, and potential. आप insight develop करते हैं. You go try to go deep inside to analyze. अच्छा, आप किस तरीके से go deep inside करते हैं? इधर मैं बात करूंगी आप लोगों से पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की. व्हेन यू पार्टनर्स आर टू काइंड्स ऑफ पार्टनर. एक आपके एम्प्लॉइज आपके पार्टनर्स हैं हु आर इनसाइड, एक आउटसाइड द कंपनी आपके पार्टनर्स हैं. आउटसाइड द कंपनी वो पार्टनर्स हैं जो कि सप्लायर्स हैं, जो कि आपके रिटेलर्स हैं. दे गिव यू अ कंप्लीट इनसाइट ऑफ, अगर आपकी रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रांग है तो डेफिनेटली दे गिव यू एन इनसाइट दैट व्हाट योर कंपैटिटर्स आर डूइंग. क्या वो प्रेजेंटली कर रहे हैं, क्या वो पास्ट में करते चले आए हैं, और उनका पोटेंशियल क्या है, वो कितना आगे जाएंगे, उनके बारे में क्या सोच रखता है कस्टमर. दिस इज वन वे टू गेट द नो हाउ of the entire market, and then give an informed basis for developing future strategies to sustain established advantages over your competitors. देखिए, जो कंपनी अपने पास्ट के बारे में नहीं जानती, कंपैटिटर्स को जानने की कोशिश नहीं करती, इफ दे डू नॉट हैव एन इनसाइट एंड इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कंपैटिटर की तरफ देखते हैं. कंपैटिटर की तरफ बिल्कुल देखें और उससे लर्न करके अपने अंदर चीजों को एम्बेड करें. हियर आई विल स्टॉप अ लिटिल बिट एंड विल आस्क यू अबाउट के बाय नाउ इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, ma'am. Anybody who is not clear or any question till now? Yes, ma'am, I'm clear. Only can you explain about niche attacks and what we call those strategic alliances? ऑल राइट. यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं सादिका के निश अटैक्स. बेसिकली बेटा, निश का मतलब होता है कि एक तो होती है ना सेगमेंट. सेगमेंट के अंदर व्हेन यू डिवाइड द मार्केट इनटू अ सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनकम. हम निश की जब बात करते हैं तो निश इज मोर सेगमेंट के अंदर बहुत स्पेसिफाइड सेगमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेहरान हैं, एक गाड़ी बनाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट, तो हम मेहरान के अंदर भी कैटेगरी बनाते हैं जो कि एसी देता है, जो कि पावर विंडो दे सकता है, कोरे वगैरह जैसी गाड़ियां जो कि बेसिक गाड़ियां हैं, जो कि एक पर्टिकुलर मिडिल क्लास के लिए हैं. लेकिन हम उनके अंदर भी कैटेगरी देते हैं उस पर्टिकुलर निश के लिए. डेफिनेटली हम उसके लिए चार्ज थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर निश को करते. कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं. बेसिकली कोरे हो गई, मेहरान हो गई, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जो कि मिडिल क्लास सेगमेंट है, जिनको फोर व्हीलर्स चाहिए टू मूव ऑन. लेकिन उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर भी एक निश ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है जो कि ये चाहती है कि उसको उसी पर्टिकुलर बेसिक के अंदर थोड़े एडिशनल फीचर्स मिलें, जिधर एसी हो, जिधर पावर विंडोज हो. फॉर दैट दे हैव टू पे अ लिटिल मोर. तो आप उसको उस सेगमेंट के अंदर थोड़ी सी अबव लेवल उस सेगमेंट उन लोगों का है, बट इट इज नॉट outside the middle class. It is in the middle class, but a particular niche who can demand for something like AC, something like added value in the basic car. समझ आई निश की आप लोगों को? Yes, समझ आइए ma'am. बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, अच्छा, the next question of yours is, can I ask any class can come in the niche? any class? No, not yes, any class can, the niche exists in any class. class तो एक बहुत बड़ी बात है ना, एक बहुत बड़ा क्लस्टर है. Okay. बेसिकली क्लास एक बहुत बड़ा क्लस्टर है. आई मीन इफ यू से एलीट क्लास के अंदर भी सेगमेंट्स हैं, और उन सेगमेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल, क्या सादका मुझे बताएं, फरारी क्या हर कोई इस्तेमाल करता है गाड़ी? No, ma'am.
No, because Ferrari has got a certain speed, certain features which everybody cannot tackle. फरारी बनती है उस निश के लिए, उस पर्टिकुलर थोड़ी सेगमेंट के लिए, सेगमेंट उसके अंदर नंबर ऑफ बायर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, नंबर ऑफ बायर्स इतने होते हैं कि कंपनी जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट के साथ प्रॉफिट भी पूरे कर ले. दे एक्चुअली फुलफिल इन फरारी द features of adventure, the features of speed. Ferrari is not for a particular segment. वो सेगमेंट के अंदर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी है ना, वो उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर निश के लिए फरारी बनती है जो कि एडवेंचर को लाइक करते हैं. Have I made my sense clear? Yes, ma'am. ठीक है. इट इज फॉर बेसिकली बहुत ज्यादा क्लासिफाइड और बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए निश का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. इट इज सेगमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफाइंड जो नीड्स हैं उनको फोकस किया जाता है. Have I made my sense clear? Yes, ma'am. The next question is the strategic alliances. Strategic alliances का मतलब ये है कि let's suppose आप strategic alliance create करती हैं. For example, आप for example किसी भी अच्छी कंपनी के साथ अपने strategic alliances को create करती हैं. For example, if I go abroad, या आप हार्डीज की एग्जांपल लें. हार्डीज बेसिकली बाहर की चेन है और they thought that Pakistan is a place where they can actually start their chain. और इस केस के अंदर उन्होंने स्ट्रैटेजिक अलायंस क्रिएट किया है सुपर एशिया वालों के साथ. बिकॉज यू नो व्हाट, इफ यू गो समवेयर, इफ यू गो इंटरनेशनल, it is very important to have a strategic alliance with the local of that particular place. It is one of the strategy. Why it is a strategy? Because you want to create a strategic alliance with those people जो कि अपने जगह को, अपनी geographic location को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं. I know Pakistan, अगर कोई कंपनी बाहर से आ रही है, they can actually create a strategic alliance with me to have a joint venture at some place. So ये strategic alliances हैं which can actually enhance the competition to the other competitors. अगर आप अकेले market के अंदर आएंगे तो it will be hard for you to analyze the customer, and it would be hard for you to analyze the entire game and the entire thing. तो strategic alliances basically एक तरीका कार है, एक strategy है to enter into the market and to compete with the market. समझ आई ये बात आप लोगों को? Yes, ma'am. All right. Going further, हम लोग competition, आप लोगों ने market myopia का नाम मेरे साथ काफी दफा सुना है. पहले चैप्टर के अंदर भी हमने बात की थी. When we do the analysis of the competitor, हम लोगों में से बहुत सारे लोग attitudinal barriers का शिकार होते हैं. Attitudinal barriers to undertake competitor analysis. कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके attitude में बात शामिल नहीं होती कि उनको competitor को analyze करना है. उसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो है complacency. Complacency का मतलब ये है that the companies think that it's all okay, जो हमारी जगह है वो हमारी जगह है, nobody is going to take our place. और ये attitude होता है that it cannot happen here, कि competition हमारे रास्ते में कोई आ नहीं सकता. देखिए, it's a myopic state. I don't want to hear it. Sometimes we don't want to hear that somebody is a competitor to us. Then we have the information already. हमें लगता है कि हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हमारी assumptions हैं जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर आगे ले चलेंगे. लेकिन ये चीजें हमारे लिए एज अ कंपनी बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं. ये किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट का एटीट्यूडल बैरियर है जो कि उनको कंपैटिटर एनालिसिस करने से रोकता है और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं इन द फ्यूचर. Then competitor analysis is not a luxury, but it is necessary in order to survive. आजकल it is very important for us to survive in the competitive world because दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के साथ आ रहे हैं. तो in that regard, competitor analysis कोई luxury नहीं है. ये बहुत important है हमारे survival के लिए. To handle the slow growth. हमारी कभी कभार जो growth है वो बड़ी slow हो रही है. उसको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा कौन मार्केट के अंदर है जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ जो है वो स्लो है. एंड देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोप अप विद द चेंज. आपने सरवाइव करने के लिए, चेंज के साथ कोप अप करने के लिए, चेंज को अडॉप्ट करने के लिए कंपेटिटर को एनालाइज करना है बिकॉज वो नया है, वो आ रहा है और चेंज तो आएगा.
हमने अगर चेंज के साथ चलना है तो हमें सबसे पहले उस चेंज को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है. हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे तो ही हम उस पर कोप अप कर सकते हैं. एंड देन वी नीड टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज. हमने देखना क्या है, जब मैंने आपको स्वॉट पढ़ाया था तो आई वाज वेरी क्लियर दैट you need to explore the opportunities. Opportunities basically trends हैं, चाहे आप वो SWOT के थ्रू करें, चाहे अब आप वो TAOs के थ्रू करें, which is actually finding out the threats and opportunities first and then finding out weaknesses and strengths afterwards. उन दोनों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी को आप अडॉप्ट करते हैं, आपने अपॉर्चुनिटी को तभी फाइंड आउट करना है जब आप कंपैटिटर को एनालिसिस करेंगे. टू अनकवर द की फैक्टर्स, आप अनकवर करेंगे की फैक्टर्स को कि कौन से की फैक्टर्स है, आपकी सेगमेंटेशन किस तरह की जा सकती है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, पॉलिटिक्स किधर जा रही है. टू री इन्फोर्स इंट्यूशन, आप जो भी इंट्यूट करते हैं अपने बारे में, आप जो असम्पशन करते हैं अपने बारे में, जो हाइपोथेसिस अपने बारे में क्रिएट करते हैं, आपको मार्केट के अंदर निकल के उसको प्रूव भी करना है थ्रू द प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स. Then competitor analysis are important to improve the quality of the decisions, then to stay competitive and to avoid surprises. Marketing intelligent होना या market intelligent होना आजकल के दौर की सबसे बड़ी नीड है to avoid the surprises. हमने we cannot be surprised कि ओहो आज मार्केट के अंदर हम बैठे थे, कोई हमारा कंपेटिटर आ गया और हमें बिल्कुल निस्तो नाबूद करके चला गया. We cannot handle that. If we want to stay in the market, we need to be proactive. We cannot be reactive. So अगर हम proactive होंगे तो ही हमें surprises नहीं ना मिलेंगे. अगर हम proactive नहीं होंगे तो definitely people will come up with their own innovations. और अगर हम अपने myopic तरीके से चल रहे होंगे और हमें लगेगा कि हम ही ठीक हैं और हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, this thing will not going to work in the market nowadays. Then, recognition of these points faces the strategist with the need to answer 5 questions. इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना है कि कंपैटिटर एनालिसिस कोई लग्जरी नहीं है, नीड है. उसके बाद हम अपने आप को एज अ कंपनी हमने 5 क्वेश्चंस के जवाब अपने आप को देने हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन ये है कि अगेंस्ट whom we are competing. हम किसके अगेंस्ट कंपीट कर रहे हैं, what are their objectives. हमारे कंपैटिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या करना चाह रहा है, how and why they want to do anything. Third is what strategies are they pursuing and how successful are they. उनकी स्ट्रैटेजी क्या है मार्केट के अंदर आने की और वो कितने हद तक कामयाब हो चुके हैं. उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं एंड हाउ आर दे लाइकली टू बिहेव, हाउ आर दे लाइकली टू रिएक्ट द ऑफेंसिव मूव. तो किस तरीके से ऑफेंसिव हो सकते हैं टुवर्ड्स अस. यू नीड टू अंडरस्टैंड. जब आप जंग में जाते हैं तो जंग में जाने से पहले आप सीधे जंग में नहीं जाते, आप अपने दुश्मन की तमाम हरकतों सकनात को, उसके पास्ट को, उसकी पास्ट में हुई हुई मूव्स को देखते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले वक्त में जो हुआ वो किन हालात में हुआ, किस बात का किस तरीके से जवाब दिया गया. ये तमाम मूव्स लर्न करने के बाद जब आप मार्केट के अंदर अप्लाई करते हैं ना अपने आप को, तो यू आर वेरी प्रोएक्टिव. देखिए, सरप्राइजेस को कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता और होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हम प्रिपेयर हो सकते हैं जो हमारे हाथ में है. और हम प्रिपेयर तब होंगे जब हम मार्केट के बारे में ना इक्विप्ड होंगे. It is an understanding of these 4 dimensions which allow the marketing to begin compiling the details of the response profile and to answer 4 principal questions. Is the competitor satisfied? क्या competitor, जब आप इन तमाम चीजों को क्वेश्चंस को पूछेंगे, आप अपनी 4 चीजों के बारे में मतलब अपने आप को 4 चीजों के ऊपर लेकर आएंगे और उनको आपको जवाब मिलेगा कि क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है, what future moves is the competitor likely to make, जो मैंने अभी बात की आपसे, in which segments or areas of technology is the competitor most vulnerable. कहाँ पे कंपैटिटर जो है वहां पे उसकी वीकनेसेस हैं, कहाँ पे उसका एरिया ऐसा जो वीक है जहां हम अटैक कर सकते हैं. एंड व्हाट मूव्स ऑन आवर पार्ट इज लाइकली टू प्रोवोक द स्ट्रॉन्गेस्ट रिटेलिएशन बाय द कंपैटिटर. और हम ऐसी क्या मूव उठाएंगे जिसके बाद हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन कंपैटिटर की तरफ आएगी. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपैटिटर कितना तैयार है. Then we need to identify a competitor response profile. Competitor का response profile जिसके अंदर you need to identify the current strategy, you need to understand their capabilities, you need to understand the assumptions and what are their future goals, what drives the competitor. फिर हमारे पास आ जाती है पोर्टर्स अप्रोच टू कंपेटिटिव स्ट्रक्चर एनालिसिस. आई एम गोइंग थ्रू इट, आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको हाईलाइट कीजिएगा.
नोट्स को इनके साथ कोलैबोरेट करके, मेरे लेक्चर को सुन के आप लोगों ने इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है. रीडिंग इज द की टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर. पोर्टर ने हमें एक अप्रोच दी कंपैटिटिव स्ट्रक्चर एनालिसिस की. अकॉर्डिंग टू द पोर्टर, the idea is that the competition in an industry is rooted in its underlying economics. What is underlying economics? आपका फॉर एग्जाम्पल आप अपनी रिसोर्सेज से बाहर जाके compete नहीं कर सकते. आपका कंपैटिटर वही होना चाहिए जो आपकी तरह का है. And competitive forces that go well beyond the established combatants in a particular industry. You need to identify. सबसे पहले तो आपका कंपैटिटर कौन है, आपने उसको भी ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करना है. You cannot compete with the giants. You need, or if you're a giant, you cannot compete with the very small things. You need to have competitor of your own level, जिसकी economic perspective आपकी तरह का है. Then he also emphasized that the first determinant of a firm's the attractiveness of the industry in which it operates. I would like to tell you over here that SWOT analysis and TOWs actually give you the identification of the opportunities, which actually gives you the measure of the attractiveness what you want to give to the market. आप मार्केट को क्या चीज देना चाह रहे हो. आप जब भी बीसीजी मैट्रिक्स को अप्लाई करते हो तो आप सबसे पहले देखते हो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कितना अट्रैक्टिव है, उसकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स क्या हैं. एंड द सेकंड डिटर्मिनेंट इज द कंपटीशन. और आपका जो सेकंड डिटर्मिनेंट है, आपका कंपटीशन आपको क्या कंपटीशन दे रहा है. द सेकंड सेंट्रल क्वेश्चन इन कंपेटिटिव स्ट्रेटजी इज अ फर्म्स रिलेटिव पोजीशन विद इन द इंडस्ट्री. कि आपकी पोजीशन इन एन इंडस्ट्री रिलेटिवली आपके कंपेटिटर के साथ किधर खड़ी हो रही है. Positioning determines whether a firm's profitability is above or below the industry average. The fundamental basis of above average performance in the long run is sustainable competitive advantage. आपका जो सबसे ज्यादा fundamental basis है ना आपकी performance को up करने का, वो आपका competitive advantage है. और वो competitive advantage आप सिर्फ तब earn करते हो जब आपको ये बात पता है that how you are different than your competitor. आपको उनके बारे में पता है, उनकी वीकनेसेस के बारे में पता है, उनकी मूव्स के बारे में पता है, और आपको ये भी पता है कि आपने किस तरीके से उनको ओवरशैडो करना है उस पर्टिकुलर चीज के अंदर. लेकिन द की इज टू एनालाइज देयर मूव्स. यू सिंपली कैन नॉट डू एनीथिंग इफ यू कैन नॉट एनालाइज देम. So by now, are we understanding the entire thing? Yes, ma'am. Any questions, Sadika, Sameer? Yes, No, ma'am. ma'am. Everything is No, clear. ma'am. Everything is clear. Go. Okay, fine. We go further then. Ma'am, clear. Thank you, beta. आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. This leads Porter to suggest that the nature and intensity of competition within any industry is determined by the interaction of 5 key forces. 5 key forces हैं जो हमें हर दफा हमारी कंपनी की हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं. सबसे पहले हमें हमेशा याद रखिएगा, मार्केट किसी की अजारादारी नहीं है. मार्केट में कोई भी आ सकता है. So there's always a threat of a new entrant. हमेशा हमारे जहनों में इस बात का थ्रेट रहता है कि न्यू एंट्रेंट आ सकता है. देन द पावर ऑफ द बायर्स. आपकी जो बाइंग, आपके जो लोगों की पावर ऑफ बाइंग है या पावर ऑफ बायर्स है, बायर कभी भी स्विच कर सकता है. इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है. यू शुड ऑलवेज बी वर्किंग ऑन हैविंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स यू. एंड देन देयर इज अ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. आपका जो सब्स्टिट्यूट, फॉर एग्जांपल थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज, एक तो न्यू एंट्रेंट है ना. अब आप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यू एंट्रेंट एंड अ सब्स्टिट्यूट. न्यू एंट्रेंट वो है जो कि मार्केट के अंदर नया आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट वो है जो कि आपके बड़े क्लोजर प्रोडक्ट को दे रहा है. और आप अगर जरा सा भी, लेट्स सपोज आप मार्केट के अंदर शॉर्ट हो जाते हैं, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट कर ले, इसका थ्रेट हमेशा रहता है. The extent of competitive rivalry. आपकी competitive rivalry, आपके जो competition है, वो हमेशा rivals जो हैं वो आपको problem, आपको tough time देते रहेंगे. And then there's a power of supplier. Supplier की power बहुत ज्यादा है. तभी मैं हमेशा अपनी हर क्लास में marketing की इस बात को समझाती हूँ that the relationship needs to be exercised. Relationship building with the supplier and retailer and the B2B intermediaries have to be very, very much capitalized. Why? Because अगर आप अपने सप्लायर को अपने हाथ में नहीं रखोगे, probably you would be ending up as a failure. Because सप्लायर ही वो इंसान है, रिटेलर ही वो इंसान है जो कि आपके प्रोडक्ट को आपके कंज्यूमर तक लेके जा रहा है. तो अगर ये सप्लाई चेन स्ट्रांग नहीं होगी,
आपको ना सिर्फ अपने कंपेटिटर के बारे में पता नहीं चलेगा, बल्कि आपका प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर हिट नहीं हो पाएगा. सो दीज आर द 5 की फोर्सेस. पढ़ाने का मकसद ये है that you need to understand them, you need to recognize them, you need to know about them. If you will know about them, only then you can think about them and you can find out the ways how to, cope up with them. Then we have against whom we are competing. This has already been discussed. Identifying competitors and new entrants. So I think I've missed one slide. Okay, this is the slide. कंपटीशन ऑपरेटिंग एट 4 लेवल्स. कंपटीशन बेसिकली 4 लेवल्स के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर रहा है. नंबर 1, कंपटीशन कंसिस्ट ओनली ऑफ दोज कंपनीज ऑफरिंग. हमेशा याद रखिएगा कंपटीशन होता किसके दरमियान है? हर एक के दरमियान. अब 14 साल के बच्चे का कंपटीशन प्रोबेबली 25 साल के लड़के के साथ नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेलेक्ट. हो भी सकता है इन फ्यू केसेस, लेकिन एक्सेप्शंस के अंदर. So you can understand one thing, that a competition consists of those companies who are offering similar products or the service to the target market, जो कि similar चीजें दे रहे हैं, utilizing a similar technology. सबसे पहले competition किसके अंदर exist करता है? जो लोग similar offering दे रहे हैं, जो similar technology को दे रहे हैं, और they are exhibiting similar degree of vertical integration. Vertical integration का क्या मतलब ये है कि उनकी जो they are having a similar degree of vertical integration, that उनका जो hierarchy है, उनकी जो integration है. Let's suppose I would give you a definition over here, a very I would give you a very clear definition of the vertical integration. Write it down while taking a lecture. Okay, ma'am. Write it down on your notes. When I talk about vertical integration is a strategy. Vertical integration is a strategy where company owns or controls its suppliers, distributors, or retail locations. वर्टिकल इंटीग्रेशन बेसिकली वो स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर अगर आप एक ही सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, सिमिलर टेक्नोलॉजी के साथ दे रहे हैं ना, तो आपके सप्लायर वगैरह भी सेम है. इधर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने सप्लायर को अपने हाथ में रखना. बहुत दफा आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है ना, दे आर सेम. ओवर हियर कंपटीशन तब एग्जिस्ट करता है जब आप सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं, सेम टेक्नोलॉजी पे दे रहे हैं, और आप जो है, और आपकी जो डिफरेंशिएशन है ना, मे बी इट्स ऑन द बेसिस ऑफ आप किस तरीके से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं अपने सप्लायर के साथ, अपनी रिलेशनशिप को बिल्डअप करके. ये पॉइंट समझ आया? Yes, ma'am. हाँ, याद रखिएगा कंपटीशन एग्जिस्ट करता है सिमिलर चीजों. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिमिलर टेक्नोलॉजी पे दे रहे हैं, तो हम फर्क कहाँ कर सकते हैं? हम फर्क तब कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्राइसिंग में फर्क हो सकता है. हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आजकल सबसे बड़ा जो कंपेटिटिव एडवांटेज है ना, वो सप्लाई चेन पे आ रहा है, वर्टिकल इंटीग्रेशन के ऊपर आ रहा है. वर्टिकल इंटीग्रेशन में आपका सप्लायर कौन है, आप मैन्युफैक्चरर कौन है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आप कॉस्ट इधर से रिड्यूस करते हैं सो दैट यू गिव अ गुड प्राइस टू द कस्टमर. सो मैं बता ये रही हूं कि कंपटीशन एग्जिस्ट कहां करता है और डिफरेंशिएट कहां कर सकते हैं आप. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, विल टेक द क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स. Competition consists of all companies operating in the same product or the service category. फिर competition कहाँ exist करता है? Of all the companies operating in the same product and the service category. सारी companies जो हैं वो एक ही product category, not the same product but the same category. यानी आपके पास options available हैं, right? आपके पास options available हैं. For example, competition exist करता है Samsung में, competition exist करता है उनके अंदर भी product category, वो भी laptops दे रहे हैं, mobiles दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं. और फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन एग्जिस्ट करता है खाली उन कंपनीज में जो सिर्फ मोबाइल फोन्स दे रहे हैं. अब जो खाली मोबाइल फोन दे रहे हैं, यानी कि आपने रिटेल बाउंड्रीज को खत्म कर दिया है. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, कि आप जो है उन तमाम बाउंड्रीज को ब्लर कर रहे हैं. सैमसंग पहले टीवी देता था,
LCD देने लगा, स्पीकर्स देने लगा, मोबाइल फोन्स देने लगा, लैपटॉप्स देने लगा. अब जो लैपटॉप्स बनाने वाले हैं वो तो टीवी नहीं, कुछ ऐसे जैसे एप्पल वगैरह है. नाउ दे आर बेसिकली कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन एप्पल एंड सैमसंग. सैमसंग के अंदर पूरी कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की, लेकिन they are competitor to the Apple in one of the two categories. I hope that you understand. Competition consists of all companies manufacturing or supplying products which deliver the same service. Competition consists of all companies competing for the same spending power. कंपटीशन उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम कंपनीज के दरमियान एग्जिस्ट करता है जिनकी टारगेट मार्केट एक है, जिनकी टारगेट मार्केट वो जिनकी स्पेंडिंग पावर एक है. सो ये वो 4 ऑप्शन हैं कि जिनमें कंपटीशन एग्जिस्ट करता है. कंपटीशन कभी भी एप्पल और ऑरेंजेस में एग्जिस्ट नहीं करता. कंपटीशन हमेशा एग्जिस्ट करता है सेम कैटेगरी की चीजों के अंदर. Then we have 5 industry structure types. मैं चाहती हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें. आपने इसको पढ़ा हुआ है उसके अंदर भी, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी. एंड आई वांट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कंपटीशन को और बहुत ज्यादा उसकी ग्राफ्स को पढ़ते हैं. सो ओवर हियर 5 इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर्स हैं. इंडस्ट्री के 5 स्ट्रक्चर हैं, ऑप्शंस हैं. सबसे पहले प्योर मोनोपोली. मोनोपोली का मतलब है एक पर्टिकुलर कंपनी की ना अजारादारी है. प्राइसेस टेंड टू बी हाई. जब प्योर मोनोपोली होती है तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं. एंड देयर इज अ लिटिल एडवर्टाइजिंग बिकॉज मोनोपोली है ना, कोई और चॉइस नहीं है, कंपटीशन भी नहीं होगा. जब आपके पास एक ही प्रोडक्ट की इजारादारी है और कंपटीशन है ही कोई नहीं, तो you are there entire thing which is not giving rise to a fair competition. When there is a monopoly, there is not a fair competition, and service level tends to be low and barriers to the entry often exist. और ये मोनोपोली का मतलब यही है कि आपकी इतनी ज्यादा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के कुछ अदारे हैं कि उधर 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 इतनी मोनोपोली है कि वो नए एंट्रेंट्स को आने ही नहीं देते. फिर इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर जो हमारे सामने आता है, दैट इज डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली. डिफरेंशिएटेड का मतलब यह है दैट यू आर डिफरेंट एट वन एंड फ्रॉम योर कंपेटिटर. एंड ओलिगोपोली के बारे में लिख लें. ओलिगोपोली की डेफिनेशन इज अ स्टेट ऑफ लिमिटेड कंपटीशन. Oligopoly का मतलब होता है it is a state of limited competition in which market is shared by a small number of producers and sellers. इसके अंदर आपके पास small numbers, मतलब market जो है ना, that is shared by few buyers and sellers that we need to understand. Differentiation का मतलब ये है कि there is a differentiation. Of course, जब 2 या 4 लोग काम कर रहे हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं differentiation होगी और होनी चाहिए. Differentiation is achieved by pursuing a strategy of quality, adding features or styling. Differentiation oligopoly में अगर आपके पास limited numbers of producer and seller है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई फर्क है, या तो कोई क्वालिटी का फर्क होगा, adding edible features होंगे, कहीं styling का फर्क होगा. The extent to which leadership or premium prices can be achieved is a measure of the success of the strategy. Depend करता है कि competition अपनी segment को किस तरीके से evaluate करता है, segment की किस weakness evaluate करता है और उसको किस तरीके से differentiate करके अपने product के अंदर लेकर आता है. Then there's a third market structure possibility, that is a pure oligopoly. Pure oligopoly का differentiation is difficult to achieve and prices are set at the going rate. The only way in which to achieve a sustainable competitive advantage is by means of cost reduction. Pure oligopoly का मतलब ये है that आप सेम, मतलब यू आर ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स. जैसे आपका पहला पॉइंट था, सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर वर्टिकल इंटीग्रेशन है, सिमिलर ही सब कुछ. प्योर ओलिगोपोली है, आप सेम चीजों के अंदर कंपीट कर रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ आपका जो कंपैटिटिव एडवांटेज है ना वो कॉस्ट रिडक्शन पे, वेयर यू कैन गिव अ प्राइस रिडक्शन टू द कस्टमर. Then there's a monopolistic competition. Companies typically focus on particular market segments where scope exists either for minimizing the degree of direct competition or in which scope for premium price exists. So this is monopolistic competition. Monopoly, pure monopoly को ही focus कर रहा है कि जिसके अंदर if you want to create a monopoly, you need to focus on a particular market segments where focus or scope exists either for minimizing the degree of direct competition, या आप कुछ ऐसा दें जो कि मार्केट में पहले कोई दे ही नहीं रहा, आपकी मोनोपोली हो और आप वो प्राइस दे सकते हैं जो कि प्रीमियम प्राइस है. ऑफ कोर्स अगर मार्केट में आप बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जब सिम्स नई मार्केट के अंदर नहीं आई थी तो दे हैड अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज एट दैट टाइम मोबाइल फोन्स के अंदर एम्स टेक्नोलॉजी थी, एम्स टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट किया करती थी.
तो उस दौर के अंदर आप सिम्स को ये समझिएगा कि जो सिम्स हैं दे वर basically had a monopolistic competition. There you had to pay so much of money for buying one SIM for the phone. And then there's a structure of pure competition. और जब आप किसी मार्केट के अंदर जाते हैं आपने मार्केट की स्ट्रक्चर को फॉलो जरूर करना है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर क्या कंपटीशन चल रहा है. अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर 4 या 5 क्या कहते हैं कंपैटिटर्स बैठे हुए हैं तो बेसिकली वो सिमिलर सर्विस दे रहे हैं. क्या कर रहे हैं वो ऐसा? क्या वो प्योर ओलिगोपोली में लाई कर रहे हैं या वो लाई कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर? वो लाई किसमें कर रहे हैं? सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ. जब तक आप इन चीजों को एज अ कंपनी नहीं फाइंड आउट करेंगे यू वुड बी एबल टू डू wonders in the market. Then there's a pure competition in which numerous firms offer broadly the same product or the service and they compete with each other either through differentiating themselves on the basis of their quality and their competitive advantage. Then there's a discussion on market perspective of competition. Discussion on the market perspective is, I would like to read over here the paragraph from the book, and you need to read that too to understand. That is on page number. That is on the page number 126 that you have already with you. As an alternative to the industry perspective of competition, which takes it as a starting point, companies make the same product or offering the same service. We can focus on companies which try to satisfy the same customer needs or which serve the customer same groups. It has been strong advocacy of this perspective that it was this which was at the heart of the classic article, Marketing Myopia. You need to marketing myopia, need to take it out and you need to work on the market dynamics to get ahead of the market. So discussion of market perspective of competition. Market perspective kya hai? If you are marketing oriented, you need to analyze the competition. Otherwise, if you don't do that, you have an attitudinal barrier and it can cost you a lot of damage. The last slide is analyzing how firms compete. What is each competitor's current strategy? How are competitors performing? What are their weaknesses? What can we expect from each competitor in the future? So these are the takeaways from my today's lecture. That you have analyzed how firms compete. आप लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से analyze करेंगे that how firms compete. You have now seen these are the takeaways that competitor की current strategy को understand करना important है. Competitor क्या perform कर रहा है उसको करना important understand. Competitor की weaknesses क्या है इसको understand करना important है. And how can we expect that each competitor will do in the future? These are the key takeaways for today's lecture. I will be uploading इसका part 2 as well today as a recorded lecture. And I will be uploading about like 3 lectures at a go, जिसके अंदर आपने एक तो इसको पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से prepare कर देना, because in my next interactive lecture, it would be followed by either an assignment or either a quiz. This is the end of my side. I would be taking the questions from you people now. Go ahead. Any question, class? Ma'am, ये 5 इंडस्ट्री स्ट्रक्चर उसके मुतालिक दोबारा एक मर्तबा बता दें. किसके मुतालिक बता दूं है ना? 5 इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो है ना, प्योर मोनोपोली तो समझ आ गया, जिसमें मैं गवर्नमेंट का आ गया ना, मतलब जैसे वापटा हो गया वो उसकी मोनोपोली है. तो उसके अलावा जो बिल्कुल है बकाया जो 4 है ना, उनको दोबारा एक मर्तबा बता दें प्लीज. अच्छा आप मुझे बोलते जाओ. अगली क्या है? डिफरेंशियल ओपियोलॉजी, ताकि मुझे पता चले ना कि आप भी इसमें क्या है. पहले समझ आ गया, प्योर मोनोपोली को समझ आ गया ना मैम. उसमें तो जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट को इदारा होता है वो आई विल गो बैक. आई विल गो डिफरेंशियल मतलब ओके. अब ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली का मतलब होता है कि डिफरेंट. मोनोपोली का मतलब होता है एक ही इजारादारी है, लेकिन ओलिगोपोली का मतलब है कि 3-4 कंपनीज जो हैं आपस में एक सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं. वो आपस में किस तरीके से मुख्तलिफ हैं. अगर आप मार्केट के अंदर आते हो तो मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करोगे. मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे कि अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट के 3 या 4 कंपनीज डील कर रही हैं तो आपस में किस तरीके से मुख्तलिफ हैं. ठीक है, किसकी क्या क्वालिटी है, किसके क्या फीचर्स हैं, आपको क्या पता चलेगा इसके बाद?
कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और मार्केट में क्या कुछ दिया नहीं जा रहा। इनाम, ये बात समझ आई? डिफरेंशिएटेड का मतलब है हाउ यू आर डिफरेंट। ऑलिगोपोली का मतलब, ठीक है, अगले अगले पे आते हैं। प्योर ऑलिगोपोली, प्योर ऑलिगोपोली का मतलब यह है कि इसके अंदर एक दूसरे के अंदर फर्क जो है ना वो पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप बराबर चीजें दे रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही तरीका है मुख्तलिफ होने का और लोगों के लिए फायदेमंद होने का, और वो है कि जिसके अंदर आप कॉस्ट को रिड्यूस कर दें। कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगी? कि जब आपका सप्लायर वर्टिकल एक तरीका है बस, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां 4 लोग बैठे हैं, एक ही चीज दे रहे हैं, आपके पास लोग तब आएंगे जब आप कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। फिर आपके पास आ जाता है एक मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। आप कोई ऐसी सेगमेंट में चले जाते हैं जहां पे कभी भी कोई नई चीज नहीं आई है, आप एक नई इनोवेशन के साथ आते हैं, तो आप एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दे रहे हैं, आप एक नए नए हैं, आपके पास इस बात की ताकत है कि आप अपनी मुंह मांगी कीमत को मांगेंगे। और फिर है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन के अंदर समहाउ एवरीबॉडी इज बेसिकली कंपीटिंग विद ईच अदर, और मार्केट के अंदर जो है ना वो एक प्योर कंपटीशन चल रहा है, वेयर यू नो एवरीथिंग इज हैज टू बी डिफरेंशिएटेड, अपना कंपैटिटिव एडवांटेज लेके चलना है। समझ आई अब आपको? डिफरेंस समझ आए हैं? जी मैम, थैंक्स। एनीबडी एल्स? नो मैम। मुदस्सिर? यस मैम, इंटरेक्टिव सेशन आज का अच्छा था। जो आपने रिकॉर्डेड सेशन किया था उससे काफ़ी मतलब नॉलेज हो गई थी और आज मतलब सारा क्लियर हो गया। चलो वेरी गुड बेटा। सादिका, यू क्लियर अबाउट इट? यस मैम, आई एम क्लियर अबाउट इट। थोड़ा प्रॉब्लम थी मुझे, लाइक वो जो नीश अटैक्स की एंड द स्टफ स्ट्रेटजिक अलायंसेस, एंड आज सुन के क्लियर हो गया। चलो थैंक यू बेटा, इज गुड। समीर? Yes, समीर? ma'am. Yes, ma'am. समीर, It's यू clear. देयर? Clear. It's clear, ma'am. इसका पार्ट 2 भी आज आ जाएगा। वेरी Okay. गुड। ज़हरा, आर वी क्लियर बेटा? आर वी क्लियर ज़हरा? Yes, ma'am. चलें, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव यू पीपल ओवर हियर, और प्लीज इंटरैक्टिव सेशंस को मिस ना कीजिएगा। दे विल बी कंसिडर्ड, इनकी पार्टिसिपेशन के मार्क्स जरूर होंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इंटरैक्टिव लेक्चर्स। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल बी अपलोडिंग वन क्विज जो कि आपको देना होगा बिफोर यू कम इनटू द इंटरैक्टिव क्लास। वो होगा आपके उन लेक्चर्स में से जो कि आपको रिकॉर्डेड मिल चुके होंगे, ताकि मुझे पता चले कि उनको सुनने के बाद आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। टुडे बाय डे एंड यू विल बी रिसीविंग पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और आपको उसको अच्छे तरीके से सुनना है, और फिर इंटरैक्टिव लेक्चर को मैं अनाउंस करूंगी एंड देन यू नीड टू अटेंड द लेक्चर। टिल देन बेटा, हैव अ वेरी गुड टाइम, study hard, and if you have any problems you can contact me via WhatsApp, via email. Either you can come to by asking me if I'm available there. Is it okay? Okay, ma'am. Yes ma'am, sure. Ma'am, about the quiz. All right, beta. I will. Ma'am, can you tell me कि quiz कब held होगा? Quiz वो आपको नोटिफिकेशन आएगा ना, क्विज का नोटिफिकेशन आएगा। आप लोगों ने अपनी गूगल क्लासरूम्स को चेक करते रहना है। ऑल राइट? ओके मैम। वो आपका जो मतलब फॉर एग्जांपल इंटरेक्टिव सेशन से पहले क्विज आएगा, अगले सैटरडे को जरूर होगा। आपने फॉर एग्जांपल इफ आई विल अपलोडिंग द क्विज 1 आवर बिफोर माय इंटरेक्टिव सेशन, आप उसको करके उसको सबमिट कराना होगा, ताकि मैं उसको एक दफा देख लूं, मुझे पता चल जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि हम इंटरेक्टिव सेशन में उसी के ऊपर बात करें। इज दैट क्लियर? ओके मैम। यस मैम। ओके बेटा, चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और टिल देन यू पीपल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। टेक केयर।